لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر ہے فتح ذکر شفا ہے ذکر ہے دوا ذکر ہے دوا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی پاکستان دی گورنمنٹ کولوں انہاں نوں پریشر کر کے انہاں نوں جناب والا لالچ دے کر کے آئی ایم ایف دے قرضے دے کر کے قادیانیاں نوں فعال کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے اور دوسری طرف قادیانیت تو نظر ہٹانے واسطے کشمیر دے اندر انہاں ماواں بہناں دے اوپر نت مسلماناں دے اوپر جناب ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جا رہے نے اور پوری دنیا خاموش تماشائی ہے آج دنیا دا جگہ سپر پاور اور ٹرمپ بدبخت جڑا کہندا ہے میں ثالث بننا ہاں آج کتے ہے کیا کشمیر دا قتل عام انہوں نظر نہیں آندا امریکہ دا کتا بھی مر جائے امریکہ دا چوڑا بھی مر جائے اے جناب والا بے تاب ہو جاندے نے مسلمانہ دی ماواں بیٹیاں بہناں دی عصمت ریزی ہوئے انہاں نوں کوئی پرواہ نہیں آج کشمیر دے اندر انڈیا نے مودی نے ظلم دا کھیل کھیلیا ہے لیکن انہوں اس بات دا پتہ نہیں اے بات سمجھدا نہیں اور تو کشمیری ماواں دے بچیاں نوں ذبح کر رہے ہیں کشمیری ماواں دے بچیاں نوں توپاں دے گولیاں دے نال اڑا رہے ہیں لیکن وہ ماواں بہناں پھر بھی اپنے بچیاں نوں غسل دے کر کے کفن پہنا کر کے پاکستان دا کلمے والا سبز ہلالی پرچم دے اندر لپیٹ کر کے پھر بھی جناب والا آزادی اسلام دا نعرہ لگاندے نظر آندیاں نے او جڑیاں ماواں کشمیر بنے گا پاکستان دا نعرہ لگاندیاں نے تو انہاں نوں دبا سکنا انہاں دے جذبے نوں ختم نہیں کر سکتا او مسلمان موت تو نہیں ڈردا مسلمان موت دا متمنی رہندا ہے اے تو سمجھو کہ اگر کافر ظلم کرے مسلمان دی غیرت جاگ جاندی ہے مسلمان دیاں سستیاں ختم ہو جاندیاں نے اور ساڈی ڈپلومیسی دیکھو ساڈی ڈپلومیسی دیکھو خارجہ پالیسی اتنی گندی ہے کہ جناب والا ادھر کشمیر دے اندر ظلم ہو رہا ہے ستم ہو رہا ہے پارلیمنٹ دے اندر ساڑھے سینیٹر ساڑھے ایم این اے ساڑھے جناب والا وزیر ساڑھے جناب والا بڑے بڑے عہدے داران اے جناب پارلیمنٹ چ ایک دوجے دے گریبان پکڑے نے ایک دوجے نو گالیاں دے رہے نے ایک دوجے تے تبرہ کر رہے نے اور جس قوم دے لیڈر اتنے نیچ ہو جان اتنے اخلاقی طور تے گر جان جنہاں دی زبان بھی اخلاق تواری ہوئے جنہاں دا کردار بھی اخلاق تواری ہوئے انہاں کشمیر خاک فتح کرنا ہے اے چند دو دن پہلے تسی پارلیمنٹ دے اندر کشمیر فورم دے اوپر پارلیمنٹ دا اجلاس بلایا گیا تے جاؤ او فورم سنو دو تیناں تو علاوہ کشمیر تے کسے نے گال نہیں کی تھی انہاں نوں گالیاں دے رہے ہیں انہاں نوں گالیاں دے رہے ہیں کشمیری بھی تہاڈا فورم دیکھ رہے ہیں انڈیا بھی تہاڈا جناب اجلاس دیکھ رہی ہے پوری دنیا جناب لائیو تے تہاڈا اجلاس دیکھ رہی ہے تہاڈی تصحیح کر رہی ہے کہ پاکستان دے حکمران جو ایک دوجے نوں جناب والا لڑ رہے ہیں اور پاکستان دا وزیر اعظم کی کہندا ہے کہ مینوں دسو میں کی کراں میں حملہ کر دیاں اور یہ بزدلی دی نشانی ہے اور بڑے جناب حیرانگی کے اندر کا اپوزیشن کہندا دسو میں کراں کی تسی مینوں مشورہ دیو میں حملہ کر دیاں تو حملہ نہ کر تو اپنا پالتو کتا لے کے جن دے نال تینوں بڑا پیار محبت ہے اے رضائن کر اور جناب والا اپنے کار بنی گالا دے اندر پرسکون زندگی گزار تینوں پاکستان دا حکمران بننے دا کوئی حق نہیں ہے اور تو حملے دی گل کرنا ہے آج جناب والا کوئی عرب ملک ساڑے نال نہیں
चाइना ने भी लद्दाख के ऊपर अपने दावे की बुनियाद पर बात की थी। आज रूस ने थोड़े हक च बयान नहीं दिता, ईरान ने थोड़े हक च बयान नहीं दिता, अरब कंट्री चो किसी ने हक च बयान नहीं दिता, यूरोप के अंदरों कोई मुल्क थोड़े नाल नहीं खड़ा। एक तैयब उर्दगान और तुर्की का शेर है, वो तो दुनिया च जिथे भी जुल्म होए वो हक की आवाज उठांदा है, वो तो हर मुसलमान दे नाल है। वगरना अज साडी खारजा पॉलिसी इन्नी गंदी हो चुकी है, इन्ना निजाम गंदा हो चुका है कि कोई दुनिया का मुल्क साडे नाल खड़े होने वास्ते तैयार नहीं है। सानू एक ही काम है, ओनू फड़ के जेल दे दो, ओनू फड़ के जेल दे दो। जनाब वाला यो ही साडी हुकूमत है। अवाम दे मसाइल का कोई हल नहीं, कौम दे मामलात का कोई हल नहीं। मेरा मौकफ नहीं, ना जुमे दे अंदर इन्हां चीज़ां की जरूरत है, लेकिन मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, ओ कश्मीर जिन्हों असी अपनी शहारत कहने आ, ओ कश्मीर जिन्हों असी अपने जिस्म का टुकड़ा कहने आ, ओ कश्मीर जिन्हों असी जन्नत नज़ीर कहने आ, ओ कश्मीर दी आवाम जेड़े गोलियां खा के भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते ने, जेड़े कर्फ्यू तोड़ करके भी ओ जनाब वाला नारा लगाते ने कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ओ जेड़े अपने बच्चों नो, बच्चियां नो, अपने बूढ़ियां नो, अपने जवानों नो ओ तुहाडे परचम के अंदर कफन दे करके सरेआम जनाब वाला जनाजे पढ़ करके दफना रहे ने, उन्हां दे बारे तुसी कहंदे हो कि असी हमला कर दिए, असी करिए की? ओ जुर्रत दा मुजाहरा करो, एक दिन मरना है। जुर्रत दा मुजाहरा करो, बुज़दिली ना दिखाओ। ये आटम बम कादे लिए? मैं दी मिसाल देना, एक बंदे ने घर कलाशनकोफ रखी, उन्हें कलाशनकोफ अपने घर के अंदर रखी है, ते कलाशनकोफ उनके हाथ के अंदर है, ते बाहरों को बदमाश गुंडा दहशतगर्द उनके घर आके उनकी बहन उनकी बीवी के बाजू तो फड़ लवे, की करेगा? क्यों जी? यो ही कहेगा ना, गोली चलावांगे जानी नुकसान हो सकता है, हालात खराब हो सकते हैं, खिते का अमन तबाह हो जाएगा, पहले ही गुरबत बड़ी है, पहले ही इफलास बहुत ज्यादा है, खिते का अमन तबाह हो जाएगा। यो ही कहोगे ना? क्यों जी? की करोगे? जे गैरत होएगी, जुर्रत होएगी, शुजात होएगी, ईमान की रत्ती होएगी, ओ बच्चे बुच्चियां दियां जरबा तकसीमा बाद चलाओगे, कलाशां नाल फैर करके उन्होंने टेर कर दोगे। ओ मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इन्हां एटम बंबां नूं की करना जे, टैक्नोलॉजी नूं की करना जे, इन्हां सारे मामलों नूं की करना जे? अज कश्मीर दी मां बहन दी इज्जत महफूज नहीं, घर महफूज नहीं। उन्हां 370 आर्टिकल खत्म करके उन्होंने कश्मीर नूं इंडिया का हिस्सा बना लिया। और जनाब तुसी मुशावरतां ते जारी हो, और दुनिया के अंदर ये जंगा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो होंदियां चलियां आईयां, होंदियां रहनियां ने, दुनिया ने तबाह भी होना है, लेकिन इस्लाम की बुनियाद पे अगर खड़े हो जाओगे, अल्लाह इहया भी देंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह इज्जत भी देंगे। मुसलमान तो इंतजार दे अंदर ने, ए नौजवान, ए जवान, इस इंतजार दे अंदर ने। अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस कदों सादक आएगी? असाबता ने अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने, और दो जमातें ऐसी आउणगियां जिन्होंने मैं जन्नत की जमानत देना। एक असहाबतुन यगजुल हिंदा, जो हिंदुस्तान नाल जंग करेगी, गजवा हिंद करेगी, वो भी जन्नती होगी। और एक ईसा अलैहिस्सलाम नाल मिलके जो दज्जाल नाल जिहाद करेंगे, वो भी जन्नत के अंदर जाएंगे, आग उन्होंने नहीं छुएगी। आज पाकिस्तान का बच्चा बच्चा नौजवान बूढ़ा इस इंतजार के अंदर है कि साड़ी गवर्नमेंट इन्हों के खिलाफ ऐलाने जंग करे, और पाकिस्तान का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, साडा माल भी, साड़ी जान भी, साड़ी औलाद भी, साडा घर बार भी इंशाअल्लाह फौज दे नाल खड़ी है। इन्हां दे नाल ही नहीं बल्कि 65 दी जंग दी तरह अवाम अगे बढ़ के इंशाअल्लाह खता वलते लड़ती हुई नजर आएगी। सिर्फ जिस कौम दे वडेरे गैरतमंद होण, वो कौम कदी भी बेगैरत नहीं होंदी। मैं अपनी अखां नालों ट्रेक देखे, कैप्टन इब्राहिम ने
मैनू अपनियां जनाब जाके वो ढेरियां वो पहाड़ियां दिखाइयां कि जिन्हां ते आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान के नौजवान कुल्हाड़ियां नाल और डंडियां नाल पत्थरां दे नाल इंडिया आर्मी दे नाल लड़े। अल्लाह ने फिर इज्जत और वकार दे नाल भी हमकनार कीता। मुसलमान नू असले ते नाज नहीं होंदा, अपनी कुव्वत ते नाज नहीं होंदा, मुसलमान नू तो रब दी जात ऊपर नाज होंदा है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलूना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाते ने गम न करो, हजीन न होवो, परेशान न होवो, तुसी आला जे, सिर्फ शर्त की इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुसी मोमिन। उन्होंने अजीब पॉलिसी खेली, IMF दे कर्जे देने ने। हाफिज सईद नू बंद कर दो। हाफिज सईद दा जुर्म की है? वो दहशतगर्द है। हाफिज सईद दा जुर्म है कि तुहाडे थर दे अंदर जिथे पाकिस्तान दी गवर्नमेंट भी हस्पताल ना बना सकी, हाफिज सईद ने फ्री डिस्पेंसरियां कैंप कीतियां, और जिथे तुहाडी गवर्नमेंट वो कुएं ना लगा सकी, हाफिज सईद ने उथे फ्री कुएं लगाए, इलाज दियां सहूलतां दित्तियां। हिंदुआं दियां बस्तियां दे अंदर भी जा करके उन्हें कुएं लगाए। उथे मुसलमान और हिंदू दा तमीज खत्म करके उन्हें इंसानियत की खिदमत की थी। हाफिज सईद दा जुर्म है कि वह जनाब पाकिस्तान के अंदर जंग नहीं करता। हाफिज सईद दा जुर्म है कि पाकिस्तान के अंदर बगावत नहीं करता। हाफिज सईद दा जुर्म है कि कलमा हक कहता है, और जनाब लोगों को कलमा हक की दावत देता है। हाफिज सईद नू अंदर कर दो, फलां नू अंदर कर दो। और जनाब उन्होंने अमरीका बुलाने तो पहले सारे दे सारे जिन्ने मजहबी रहनुमा सन उन्होंने अंदर करवाया। कश्मीर के जिन्ने हुर्रियत लीडर सन उन्होंने भी अंदर करवाया। और साडे जनाब वाला ए खान साहब नू अपने को बुला करके इनू जनाब और राम कहानी सुना करके ये कहता मैं इंज अज पाकिस्तान च आ रहा जिमें मैं वर्ल्ड कप जित के आ रहा। वो वजीर आजम बन गया, क्रिकेट चो फिर नहीं निकलिया। ये साडे मुल्क नू भी जनाब क्रिकेट की टीम बनाई बैठा है। हर गल के ऊपर जनाब मैं वर्ल्ड कप जित के आ गया। वो गेंद बल्ला हो रहे, हुक्मरानी हो रहे। ये हुक्मरानी गेंद बल्ला नहीं, ये हुक्मरानी फील्डिंग नहीं, ये जनाब कजाफी स्टेडियम का ग्राउंड नहीं। इत्थे इज्जत ते गैरत के सवाल उठते हैं, इत्थे जुर्रत के सवाल पैदा होते हैं। आ देखा जाए उन्होंने फिर प्रोटोकॉल दिता, 370 आर्टिकल भी उन्होंने इंडिया को खत्म करवाया। और जनाब वाला आंदे ही उन्होंने सारे मामले करा के उन्होंने सानू जीरो ते ले आंदा। और साडे हुक्मरान फिर बड़े फखर नाल जनाब वाला आकड़ रहे ने असी इंडिया के अंदर सफारती जंग जित के आ गए। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाइयों, कौमां जिंदा कदों रहिंदियां ने जदों गैरत होए। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बे कौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बे अनफुसिहिम। अल्लाह भी उस कौम की हालत नहीं बदलती जदों तक वो कौम अपनी हालत आप ना बदल लवे। उन्होंने आर्टिकल तोड़े, कानून तोड़े, ज़ाब्ते तोड़े, अमरीका की सालसी नू मुस्तरद किया, अकवामे मुत्तहिदा की सालसी नू मुस्तरद किया। तुहाडा हक बनता सी हाफिज सईद नू जनाब जेलों कढ़ के, अब्दुल रहमान मक्की नू जेल चो कढ़ के, दीगर तंजीमां दे कादीन नू जेलों के अंदरों कढ़ करके उन्होंने इजाजत देंदे कि निकलो अपने मुजाहिदां नू लेके बार्डर की तरफ पहुंचो और जनाब इंडिया के ऊपर हमले कर दो। मैं वेखदा आज ऐलान कर देन इंडिया के जनाब दंद खट्टे हो जाएंगे, अमरीका भी पिटेगा, अकवामे मुत्तहिदा भी पिटेगी। ना ना अपने मुजाहिदां नू रोक लो, एक काम ना करो। और तुहाडे कोलों नहीं डरदे, हाफिज सईद दे मुजाहिदां तो डरदे ने। और तुहाडे कोलों नहीं डरदे, और जनाब वाला मुजाहिदीन इस्लाम को डरते ने। सिर्फ एक मरतबा इन्होंने इजाजत दो कि अपने मुजाहिद लेके, अपने सिपाही लेके वाघा बॉर्डर की तरफ जनाब निकलो, तो देखना पूरी दुनिया किवें पिट उठेगी। अज कश्मीरियों का खून देख के नहीं पिटदी, जदों इंडिया नू रोक इन्हां दा होएगा तो फिर जनाब कहणगे रोको इन्हां नू, हाफिज सईद नू रोको, ओनू रोको, ओनू रोको। अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाइयों, ए मुजाहिदीन तो तुहाडी फौज ने,
हाफिज सईद नूं कोई अदालत का एक मुकदमा ऐसा पेश कर दो जिंदे अंदर पाकिस्तान की अदालत ने उन्होंने मुजरम से सुनाया हो। बाहर क्या मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अपने कश्मीरी मुसलमानों वास्ते दुआवां करो, कश्मीरी मुसलमानों वास्ते दुआवां करो। अज जुल्म कश्मीर ते कल अग साडे कोल भी आ सकती है। और मैं तो अलल ऐलान कहूंगा, डंके दी चोट कहूंगा, अपने नौजवान बेटियां नूं जिहाद दी ट्रेनिंग दो। आर्मी दे जनाब वाला कॉलेज दे अंदर जो सिविल डिफेंस के नाम ते जनाबे वाला जो कैंप ने इन्हां नूं ट्रेनिंग दो, ताकि कल कला अगर इंडिया कोई भी दुश्मन साडे ऊपर हमला करे तो फिर साडे नौजवान खाली सीने ते गोलियां खाण वाले ना होण। इन्हां नूं असला चलाना आंदा होए, पिस्टल चलाना आंदा होए, इन्हां नूं कलाशन चलानी आंदी होए, इन्हां नूं जन बंब नूं नकारा करन दा तरीका आंदा होए, बंब चलाना आंदा होए, ताकि असी फौज दा राह ना वेंदे रहिए। फौज तो अपनी जंग लड़ रही होएगी, असी भी फौज दे दामे दरमे सुखने उन्हां दे नाल मिल करके दुश्मन दे नाल लड़ सकिए, अपना दिफा कर सकिए। और ये जनाब वाला अल्लाह दे पैगंबर दी हदीस है कि मन जिस बंदे ने मल्लम यगजू, जिस बंदे ने ना तो गजवा किया ना जिहाद किया, ना जिहाद का शौक ही पैदा होया, माताला शोबतम मिनन निफाक, इनू जदों मौत आएगी इनू निफाक ते मौत आएगी। मन माता वलम यगजू, और जेड़ा इस हालत च मर गया, ना गजवा किया ना जिहाद किया, ना जिहाद का शौक पैदा किया। अल्लाह का कुरान की आंदा है, वाइदू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह व अदुव्वकुम। और ट्रेनिंगां करो, जिहाद करो, अपने घोड़े तैयार रखो, ए जनाब जंगो जदल की तैयारी करो। अल्लाह दुश्मनों ते रोक पा देंगे। जदों तो असी एक कफियत छड़ी, मुसलमान ने जिहाद तरक किया, अलमे जिहाद नूं झुका दिता, जनाब वाला पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जलीलो खार होकर रह गया। और मुसलमान की इज्जत का निशान जिहाद है, जिहाद है। और जनाब वाला जदों तक मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान अवाम ये जिहाद करते रहे, अल्लाह ने पूरी दुनिया च इज्जत दी। ए पूरी दुनिया के काफर ए जनाब तुहानू टैक्स दे के अपना जिजिया दे करके गुजारते सन। आज जिमें तुसी अकवामे मुत्तहिदा जांदे हो, इवें एक दौर सी कि अमीर मुआविया दे दौर दे अंदर, बनु उमैया दे दौर दे अंदर एक काफर अपनी अर्जा लैके तुहाडे कोल आंदे सन। ए तुहाडा अंदलस फतह कीता है कि ईसाई लड़की दी दावत ते जाओ तारीख पढ़ के देखो, एक ईसाई लड़की जिंदी इज्जत तार तार हुई, उन्हें मुसलमानों को आवाज दी थी। तो फिर मुसलमान ने जनाब वाला अंदलस नूं फतह करके 1000 साल तक उत इस्लाम दा परचम लहराया। आज भी जामिया मस्जिद कुर्तबा अंदलस दे अंदर मुसलमाना दी अलामत दी निशानी है। आज जनाब तुहानूं कंडा लगदा है अमरीका अगे, अकवामे मुत्तहिदा अगे, और मुसलमान काफर अगे हाथ नहीं फैलांदा। मुसलमान काफर अगे 3 शर्तां रखते हैं, असलम मुसलमान हो जा, नहीं होना। फिर जनाब की कहते हैं जिजिया दे, तेरी असी हिफाजत करांगे, नहीं देना। फिर मुसलमान कहते हैं चल हुण जंग लई तैयार हो जा। मुसलमाना दियां 3 ही शर्तां होंदियां ने, जे कलमा पढ़ लैन वो साडे भाई, जे जिजिया दे देन ते फिर जनाब वाला असी उन्हां दी हिफाजत करांगे, ते जे दोवें काम कबूल नहीं फिर मैदान जंग फैसला करेगी। मुसलमान का तो यह अंदाज होंदा है, अज जिजिया असी दे रहे हैं, टैक्स असी दे रहे हैं, सूद असी उन्होंने दे रहे हैं, उन्हों की गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और जब तक साडे हुक्मरान ये जनाब IMF के कर्जे छड़ के, अकवामे मुत्तहिदा दी अर्जा छड़ के, इन्हां काफरां दी सरपरस्तियां तरक करके अपने पैरों ते नहीं खड़े हो जाते, तब तक हकीकी इज्जत मिल नहीं सकती। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल